हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग एसएससी सीजिल एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड रिविजन फुल टेस्ट 2 अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो स्विच ऑफ द फुल स्क्रीन करते हैं। अब मैं इंग्लिश से ही स्टार्ट करती हूँ। डैश रेडली अ मैन frequently enter into casual sexual relationships with women. That is Philander, I think इनको इसको यही बोलते हैं। 7 next. The mother told her daughter that she had to eat all her vegetables before she could have dessert. The mother told her dessert मतलब told her daughter मतलब mother said to her होगा, या तो पहला होगा या तो तीसरा होगा। Said to her daughter she had to eat यानी you have to eat all your vegetables. Next. Either Ravindra or his friends. Either Ravindra or his friends has joined the club. I think no improvement. देखो, या तो हैव ज्वाइन नहीं होगा, हैज़ ज्वाइन को रविंद्र से ही चलता है। आइदर रविंद्र और हिज फ्रेंड्स हैज़ ज्वाइंड। क्वेश्चन का एंटोनिम बताना है, मतलब केयरफुल रहना। तो अटेंशन तो नहीं होगा, रेस्ट्रेंट, रैशनेस, आई थिंक रैशनेस होगा। नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू अकम्प्लिश। A young boy offered her his seat. I wish I had eraser to erase all the mistakes in my life. All the mistakes in my life नहीं होना चाहिए। I have a lot of work to complete. इसको बाद में करते हैं। We have already given him notice to vacate our house. We have already मतलब we have already यानी he has already given a notice. We have already given him a notice. He has already been given a notice to vacate our house. Next, generally honesty comes from the heart. Colossal sums have dash wasted on this project, have been wasted on this project. Mathematics are including तो नहीं होगा, mathematics includes the various study of topics. Mathematics एक subject है, mathematics includes the various study of, इसको बाद में करते हैं। The politicians guaranteed that he would create jobs if elected. Guaranteed की spelling GU I think so it is guaranteed. I think last one होगा। Mark for review रखते हैं इसको। The teacher said, students, which of you would volunteer to convene the annual day celebration this year? The teacher asked the students, which of you? The teacher asked the students whether they would. The teacher said to students to volunteer. Which of you would volunteer? मतलब ये तो कोई क्वेश्चन है, तो अगर कोई क्वेश्चन है ये which of them would volunteer, I think पहला ही वाला सही होगा। which of them would volunteer to convene the annual day celebration that year? Next, it does not appear that Raman is responsible for Amita, who has remained missing from her Pembun Island home last week. It doesn't appear. It doesn't appear that Raman is responsible. I think it doesn't appear, कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। Who has remained? Who has remained missing? It doesn't appear that Raman is responsible for Amita, who has remained missing from her Pembun Island home for last week. Since last week होना चाहिए, sorry, for last week नहीं होना चाहिए, since last week. I'm not very excited about the basketball, but skating is exciting. Next, realm का एंटोनियम, किंगडम, डोमेन, एक्टिविटी या स्काई का रियल्म का एंटोनियम बताना है। रियल्म देखो, किंगडम और डोमेन तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट्स एक्टिविटी होगा। आई थिंक एक्टिविटी, एंटोनियम तो नहीं, बट बाकी सब तो सेम ही। रियल्म का मतलब क्या होता है? कोई एक प्रॉपर कोई एरिया होगा। मैं इसको मार्क फॉर छोड़ो, इसको बाद में करते हैं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन इन सोशल सेटिंग, ये भी बाद में करते हैं। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ पर्सन हु कैन स्पीच टू लैंग्वेज? टू लैंग्वेज है तो बाइलिंगुअल बोलते हैं इसको। अब हम पहले जो हमने पैसेज छोड़ा था, सॉरी जो PQRS छोड़ा था वो करते हैं। पॉलिटिक्स इज एक्साइटिंग बिकॉज बिकॉज पीपल डिसअग्री। ठीक है, ये है। अब स्टार्ट किससे करते हैं? RPQR से देखते हैं। दे डिसअग्री अबाउट व्हाट दे शुड लिव।
आर के बाद इनके ऑप्शन के हिसाब से एस है. हु शुड गेट वॉट, हाउ शुड पावर एंड रिसोर्सेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड शुड सोसाइटी बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, इनके बाद आर के बाद एस के बाद पी है या तो क्यू है. फॉर एरिस्टोटल, पॉलिटिक्स इज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट गुड सोसाइटी बिकॉज पॉलिटिक्स इज अबव ऑल अ सोशल एक्टिविटी. फिर क्यू, क्यू क्या है, दे ऑल्सो डिसअग्री अबाउट, हाँ दे ऑल्सो, आई थिंक आर एस क्यू पी होना चाहिए. पॉलिटिक्स, इट इज़ नॉट सॉलिटरी टू मेक पॉलिटिक्स अ गुड सोसाइटी. आई थिंक क्यू के बाद पे होना चाहिए. सेवन नेक्स्ट, 11th वाला देखते हैं. अरुण स्टेटमेंट कह रहा है अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स. ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. पी है, एस है, आर है और पी से स्टार्ट करते हैं. देयर वाज अ लिटिल मनी एंड ही हैड सम स्टॉक्स ऑन हैंड. ठीक है, फिर पी के बाद इनका क्या है, क्यू है या एस है, बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली. पी के बाद एस देखते हैं. फिर क्यू क्या कह रहा है, द प्राइसेस वर गोइंग डाउन एंड ही कुड हार्डली रियलाइज द फ्यू हंड्रेड रुपीज. क्यू. फिर आर क्या है, एट फर्स्ट ही वुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स. When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. I think this is the correct answer. PSQR. 7 next. 17 number. When Brian hears about school's talent show, he decided to sign up. क्यू पी पी क्यू, क्यू से या पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट करके देखते हैं. ब्रायन थिंक्स इट डजेंट फील वेरी गुड व्हेन समवन लाफ्स एट यू इन अ मीन वे. ओके, क्यू के बाद इनके हिसाब से आर है, सो दैट ही कैन शेयर इज कॉमेडी फ्रॉम द स्टेज. या फिर क्यू के बाद पी है. ब्रायन क्यू के बाद तो क्यू पी था, पी के बाद या तो क्यू है या तो एस है. ही हैज़ नेवर डन रियल स्टैंड अप कॉमेडी बिफोर एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड. आई थिंक क्यू से स्टार्ट करते हैं. ही, क्यू के बाद क्या है, आर, सो दैट ही कैन शेयर. आर तो नहीं होगा. क्यू के बाद पी. ही हैज़ ब्रायन थिंक्स दैट ही डजंट फील वेरी गुड व्हेन पीपल लाफ यू एट मीन वे. क्यू पी. फिर आर क्या है, सो दैट ही कैन शेयर इज कॉमेडी. ये तो गलत है. क्यू पी आर एस, लास्ट वाला तो गलत हो गया और पहला वाला भी गलत है, तो पी से स्टार्ट करते हैं. पी के बाद सो दैट ही कैन शेयर हिज कॉमेडी फ्रॉम द स्टेज. पी के बाद आर है. पी के बाद क्यू, ही हैज़ नेवर डन, ही इज़ वेरी एक्साइटेड. फिर आर, फिर एस, बट व्हेन सम ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड आउट दैट ही विल पार्टिसिपेट दे लाफ एट हिम. आई थिंक दिस इज द राइट आंसर. पी के बाद एस होना चाहिए. 7 नेक्स्ट. 19 number. Once upon a time there lived a stork who used to pick fishes from the pond beside him and eat them. फिर डी सी बी सी. डी से in order to feed himself he thought of a plan. Okay. डी के बाद ए, he told fish, frogs, crabs that some men are planning to fill the pond and grow crops and that's why there shouldn't be any fish in the pond. The stork promised to take all of them to a bigger pond and told them they would only. However, as he grew older, he found it difficult to catch a single. आई थिंक सी से होगा, फिर डी से होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा. सो सेवन नेक्स्ट. अब ये पढ़ लेते हैं और मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं देने वाली हूँ. लेट्स स्टडी दिस. ओरिगैमी. ओरिगैमी पेपर आता है वैसे, पढ़ते हैं. ओरिगैमी an ancient Japanese art of paper folding paper होता है ओरिगैमी. practiced for centuries. 7 next. According to the passage, what must an origami artist not use in their work? Origami has been practiced for centuries, fascinating people all over the world with its intricacy and beauty. The word origami itself means ori means folding, kami means paper. It's an art that requires nothing more than a flat surface, a piece of paper, and the imagination and skill of the artist. तो इसमें क्या क्या रिक्वायर करता है? पेपर करेगा, सीजर नहीं रिक्वायर करता है. 7 next. What is the closest word of the applications used in the applications?
The main rule of the origami is that the artist must transform a flat sheet of paper into a sculpture through folding and shaping without the use of scissor, glue, and markings. Despite these constraints, a vast range of designs can emerge. These includes everything from the simplistic representation of animals such as birds and fish to more complex structures like architectural models and geometric figures. One of the most popular designs of origami is the crane, which is considered as a symbol of peace and longevity in Japanese culture. The crane is so deeply embedded in the tradition that there exists a belief which states that if one folds thousands of origami cranes, one wishes will be granted. अच्छा ऐसा होता है. The applications of origami extended far beyond simple aesthetics and cultural practice. It is used in science and technology with applications in field. With applications in field, देखो applications में आ गया है. The applications of origami application मतलब होता है uses or functions. Say, why is crane popular origami design according to the passage? I think it symbolizes peace and longevity. Then, according to the passage, origami is not only an art but also uses which of the following fields? Which of the following fields? It is used in science and technology. इसमें लिखा है. तो science and technology with application medical device to medical to space structures. Save and next. Let's switch to GS section, that is part B. रामानुज माधवाचार्य, ये नहीं पता मुझे. सेव एंड नेक्स्ट. मोहन चंद्रशेखर, ये भी नहीं पता. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए इक्वल इक्विनॉक्स होता है. अच्छा, इक्वल पीरियड, इक्वल, आई थिंक दैट इज, मेरे ख्याल से वीनस है. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. ये नहीं पता मुझे. ये निफ्टी तो आई थिंक इंडिया का ही है. बी का 3 है. बी का 3 दो ऑप्शंस में. अब मैं एलिमिनेशन लगाती हूँ. ए का क्या है? FTSE 100 या तो ब्रिटेन है या तो USA है. आई थिंक डी का 1 है. मेरे ख्याल से निक्की 225 जापान का है. तो मैं इसके साथ लगा के मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ. इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस मेजर्ड सेम टेम्परेचर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एवोगैड्रो होता है. एवोगैड्रो नंबर भी होता है. 6.02 × 10 की पावर 23 या 22 होता है. रेजोल्यूशन पास इन राज्यसभा आर्टिकल 2 अंडर आर्टिकल 249 empowering parliament to legislate on a state subject force within 6 months, not exceeding 6 months. Who among the following wrote मातोश्री? मराठा क्वीन, नहीं पता. देखो मातोश्री, देखो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अमीश त्रिपाठी होगा. चेतन भगत की बुक्स में नंबर्स होते हैं. 5.1, वन नाइट एट अ कॉल सेंटर, ऐसे टाइप के होते हैं. रेवोल्यूशन 2020. तो आई थिंक अमीश होना चाहिए इसका आंसर, बिकॉज ये कुछ माइथोलॉजी से रिलेटेड ही बनाते हैं. मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स, ये नहीं पता मुझे. पीएम पोषण शक्ति निर्माण रिप्लेस बाय मिड डे मील. हाँ, ये तो ऐसा लग रहा है. द न्यूट्रिशनल नॉर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक, नहीं पता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स? नो आइडिया. खादी एंड विलेज कब आया था? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फर्स्ट में तो नहीं आया था. सेकंड में तो इंडस्ट्री हो गई थी. फर्स्ट में एग्रीकल्चर था. थर्ड में भी नहीं. आई थिंक 4th 5-year प्लान में आया है ये. द टाउन्स वर प्लान्ड इन अ डैश ग्रिड पैटर्न, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न. फिर क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के बारे में मेरे को नहीं पता. ये नंदा देवी उत्तराखंड में. ए का 2 है. सिमलीपाल उड़ीसा में है. बी का 3 है. ए का 2, बी का 3, एक ही ऑप्शन है. दैट इज फर्स्ट वन. नेम वन ऑफ द फेमस टेली सल्तनत. पैरट ऑफ हिंदुस्तान अमीर खुसराव को बोलते हैं. नेक्स्ट, हु रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच? नहीं पता ये. ये भी नहीं पता. विच वन इनकरेक्ट बताना. रिवोल्ट ऑफ 1857. एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम, ये सही था. अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, लैक ऑफ यूनिफाइड. आई थिंक एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन गलत है ये. इट एम्ड एट encourage वन मित्र, नहीं पता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेल नोन वेराइटी ऑफ कॉफी ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम येमेन? अराबिका तो आई थिंक केरला में ही बनती है. ये मुझे नहीं पता ये. फिर भी मैं अराबिका केरला में बनती, मैं यही लगाती हूँ. मार्क फॉर रिव्यू. वेयर वॉज एशिया सर्फिंग? ये नहीं पता. मुगल पेंटिंग्स वर मेड ऑन क्लोथ्स, नो आइडिया. फिनोमिना ऑफ अकरेंस ऑफ एडिशनल स्पीचेस फाउंड इन ऑक्टेन. बहुत टफ क्वेश्चन, मतलब पढ़े ही नहीं है ऐसा लग रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ अ कॉन्करेंट लिस्ट? कॉन्करेंट मतलब दोनों में आता है. सिटीजनशिप तो यूनियन का पार्ट है. आर्म फोर्सेस भी यूनियन का पार्ट है. एनिमल हस्बेंड्री, मैरिज एंड डिवोर्स, आई थिंक ये तुम्हारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दोनों में आएगा.
अब मैं पार्ट ए में आती हूँ। सो इसको बाद में, पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मैं जल्दी कर लूँगी। दैट इज़ जैसे ये वाला होता है, इसमें बताना है कंपेयर फॉर आइडेंटिफाई विच वन ऑफ एग्जैक्टली, सिर्फ एक ही मिस्टेक हो। MULIS जेड 5643875 RUB 7765 ऑल्टो एक्स 00348 00348701785 आई थिंक पहला ही वाला है, क्योंकि इसमें सिर्फ 00348 701 और 702, आई थिंक यही सही है। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। 16 4 और इसमें क्या रिलेशन बना रहा होगा? 16/4 करोगे तो 4 आएगा, और 16 × 4 करते हैं तो 64 आता है। 3 इसको बाद में करते हैं फिर, इसको भी बाद में करेंगे, इसको भी बाद में। इसको देखते हैं। A+P का मतलब होता है A इज़ द सन ऑफ P, A इज़ द सन ऑफ P, P का सन है A। P-Q का मतलब है P इज़ द वाइफ ऑफ Q, P वाइफ है तो Q क्या होगा? हस्बैंड होगा। Q और R में क्या रिलेशन है? Q इज़ द फादर ऑफ R, R का फादर है। R और S में क्या रिलेशन है? R इज़ द वाइफ ऑफ S, ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है। नॉट करेक्ट। A इज़ द ब्रदर ऑफ वाइफ ऑफ S, S की वाइफ का ब्रदर A है, बिल्कुल सही बात है। P इज़ द मदर ऑफ A, P A की मदर है, सही बात है। Q इज़ द फादर ऑफ A, Q A का फादर है, सही है। A इज़ द सन ऑफ S, A इज़ द सन ऑफ S, गलत, लास्ट वाला गलत है। 7 नेक्स्ट। AEIOU 1 2 3 4, O की कोडिंग 4 है क्योंकि वॉवल्स को अगर लिखें, और G का होता है 7 और D का होता है 4, ठीक है। अब यहाँ से कहते हैं H होता है 9, ठीक है। I की कोडिंग क्या है? 3। N क्या होता है? N इज़ 14 और 20, 931420। H 8 है, सॉरी, 831420, 831420, 831420। 7 नेक्स्ट। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई है। R इज़ द डॉटर ऑफ Q, ये R उसकी डॉटर है Q की। और S इज़ द सिस्टर ऑफ P, मतलब ये इसकी भी सिस्टर ही होगी S एक तरीके से। Q इज़ द सिस्टर ऑफ, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, ये सिस्टर है। T इज़ द ब्रदर ऑफ R, T इज़ द ब्रदर ऑफ R। हु इज़ द अंकल ऑफ T, T का अंकल कौन है? P है। ABCD इज सिटिंग इन अ वेस्ट फेसिंग। A एंड B से मान लेते हैं ABCD और E 2 3 1 2 3 2 5, ऐसे मान लेते हैं वेस्ट डायरेक्शन है। A एंड B आर सिटेड, A और B अगल बगल बैठे हैं। C सिटिंग एंड द साउथ एंड। अगर ये सीट्स हैं, ऐसी ऐसी सीट्स हैं 1 2 3 4 5, 5 हैं, और सी साउथ एंड में बैठता है, यानी सी यहाँ बैठता है। डी सी यहाँ बैठता है तो सी कैंसिल हो गया। डी इज सिटिंग एट द नॉर्थ एंड, डी यहाँ बैठेगा। ई इज़ द नेबर ऑफ बी एंड सी, और हमें ये पता है कि ए और बी अगल बगल बैठते हैं, और ई इज़ द नेबर ऑफ बी एंड सी, तो ए बी और ई, ये हो गया। हु इज सेकेंड फ्रॉम द साउथ एंड? ई। 7 नेक्स्ट। नेक्स्ट है 14 9, 14 + 5 और 25। देखो अब 14 है, +1 + 4 किया है तो 5 19 हो गया। 25 में 5 + 2 7 प्लस किया है तो 32 हो गया। तो वैसे 103 में 3 + 4 प्लस करो तो ये आ जाएगा 107, 107। 7 नेक्स्ट। P होता है 16, S होता है 19 22 और Y होता है 25, तो +3 +3 +3 28 होगा, यानी बी से स्टार्ट होगा, एक ही वर्ड है, दैट इज यही है। 7 नेक्स्ट। 7 11 14 25 29 और 55, तो 7 + 4 11 + 3 14 + 9, नहीं 14 + 11 और 4 29 माइनस करो तो 6 26। कुछ बन रहा है क्या? एक सेकेंड, फिर से देखो, ये यहीं देखते हैं, बल्कि ये शायद ऐसे कर रहा है। ये मतलब ऐसे है कि × 2 + 0, फिर 14 × 2 + 1, फिर ये इसका क्या है, × 2 + 3 और × 2 + 5, ये है। तो आई थिंक इधर हो जाएगा × 2 + 2, तो 29 2 × 58 + 2 60 आंसर होगा। 7 नेक्स्ट।
विटामिन ए से ब्लाइंडनेस होती है, तो विटामिन सी से स्कर्वी होती है। सम बुक्स आर पेंसिल, कुछ बुक्स जो हैं वो पेंसिल्स हैं। ऑल पेंसिल्स आर शार्पनर्स, ऑल बुक्स आर बैग, सभी बुक्स बैग्स हैं। सम बैग्स आर शार्पनर, पहला तो सही है। सम शार्पनर्स आर बुक्स, दूसरा भी सही है। सम शार्पनर्स आर पेंसिल, सम शार्पनर्स आर पेंसिल, तीसरा भी सही है। तो सारे सही हैं, ऑल फॉलोज। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑल कंटेम्प्रेरी, सभी कंटेम्प्रेरीज एंसेस्टर्स हैं। फ्यू एंसेस्टर्स आर हायर्स, नो कॉन्टेम्प्रेरी इज़ अ हायर, कोई भी कॉन्टेम्प्रेरी हायर नहीं है। सम कॉन्टेम्प्रेरीज आर हायर, अगर कोई भी कॉन्टेम्प्रेरीज हायर है तो ये कैसे, पहला तो गलत है। सम हायर्स आर एंसेस्टर्स, दूसरा ही सही है। सेव एंड नेक्स्ट। ये देखें अगर, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, ठीक है। तो 1 2 इधर से 3, ये 3, ये तो 6 हो गया। फिर ये पूरा 7 हो गया, ये पूरा इसको मिला लो तो 7 + 1 7। फिर ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। आई थिंक 11 है। सेवन, मार्क फॉर रिव्यू। 1 2 3 3 3 6 7, ये पूरा 8 9 10 11। सेवन नेक्स्ट। जे इज़ 25, जे का कोड होता है 10, और गेम होता है, गेम इज़ 7 1 13 और 5 7 7 1 8 8 5 13 3 16 26 26 और 65 25। जी अगर 25 है तो जी कितना होगा? इफ़ द वैल्यू ऑफ जे इज़ 25, इसको बाद में करते हैं। एट द रेट इंडिकेट्स आइदर प्लस और इनटू। अच्छा, वी हैव अ चॉइस टू रिप्लेस ऑफ द 4 साइंस एक्सप्रेशन बाय दिस और दिस। अच्छा, तो अगर मैं इंटू करूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5, वॉट विल बी द मिनिमम वैल्यू? अच्छा, मतलब कि क्या कह रहा है, आइदर बाय दिस 5 5 4 ज़ा 23 ज़ा 62 ज़ा 120। आई थिंक 1 × 2 + 3 + 4 + 5, तो 2 + 3 2 + 3 5 और 9 5 14, आई थिंक यही होगा। सेवन नेक्स्ट। इन अ रो x इज़ 24th फ्रॉम द लेफ्ट एंड y इज़ 28th फ्रॉम द राइट। कोई रो है जिसमें से x 24th है राइट से, मतलब इस साइड से जो x की पोजीशन 24 है, यानी यहाँ पे 23 लोग हैं इसके आगे, और y की किसी एंड से 28th है। तो व्हेन दे इंटरचेंज पोजीशन रिस्पेक्टिवली, अगर इंटरचेंज कर देगा पोजीशन तो y बिकम्स 40, ये हो जाएगा y बिकम्स 40 फ्रॉम द राइट एंड। y अगर x चला जाएगा तो यहाँ पे अगर 40 हो जाएगा। व्हाट विल द पोजीशन ऑफ x फ्रॉम द लेफ्ट? इसको बाद में करते हैं। सेवन नेक्स्ट, बाद में करते हैं, इसको करते हैं 1 2 x b b y y c c 6 z z z। तो ग्रुपिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 6 में ग्रुपिंग करते हैं 3 4 5 6। ये क्या कह रहा है, 1 2 6 ट्रिपल जेड, इज इट? थ्री करोगे अगर, कैसे करेंगे, ये बाद में करते हैं। इसको इनइक्वालिटी देखते हैं। सी कंक्लूजन कह रहा है ओ ई से क्या ये है, तो पहले ओ देखते हैं। ओ जो है वो टी है, और टी एच है, और एच जो है ई के बराबर है। तो यहाँ से क्या हमको ओ ऐसा कुछ मतलब ओ टू टी से, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि अगर ओ जो है वो टी से छोटा है और टी से
टी जो है वो ई से बड़ा है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो, तो पहला तो गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा ये है कि एस ओ से, क्या एस ओ से छोटा है, तो एस का रिलेशन देखते हैं। तो पहले तो ओ मतलब ओ हो गया, ओ टी एच जो ई के बराबर है, और एस, नहीं ये भी गलत। सी और एच में देखते हैं रिलेशन, सी और एच। सी जो है वो ये रिलेशन है, और ओ की रिलेशन टी से ऐसी है, एच। तो क्या इससे पता चल रहा है? गलत, कोई फॉलो नहीं कर रहा है, नन ऑफ दीज, सेव एंड नेक्स्ट। एल होता है 12, 20, एक्स होता है 24, ओ होता है 15, एम होता है 13। तो बी होता है 2, 2 के बाद जे होता है 10, फिर 3, फिर 5 और 3। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। आई थिंक ये 8 का डिफरेंस है, फिर 4 का है, फिर ये माइनस हो जा रहा है 9, और फिर ये क्या हो जा रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। पता नहीं यार क्या रिलेशन बन रहा है इसमें, नो आइडिया, सेव एंड नेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारे छोड़े हैं, वो देखते हैं। मैं जैसे ही 30 मिनट्स का टाइमर होगा मैं स्विच कर जाऊंगी, तो पहले देखते हैं। शुड लर्निंग सेल्फ डिफेंस बी मेड कंपलसरी फॉर स्टूडेंट्स? ओके, आर्ग्यू नो, देयर इज अ रिस्क दैट दे विल मिसयूज दिस स्किल्स टू बुली अदर्स। येस, इन एन एनवायरमेंट वेयर केसेस ऑफ असॉल्ट एंड वुमेन आर इंक्रीजिंग। देखो आई थिंक सेकेंड ही स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज नो बुली अदर्स, ये तो गलत है। सेव एंड नेक्स्ट। थर्ड देखते हैं, ये थर्ड नहीं आता है, फोर्थ देखते हैं। द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ जॉब फॉर अ जॉब इज ग्रेजुएशन, हाउएवर कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन may also apply. Some candidates who have yet to graduate can there be in the list of selected. अगर अप्लाई कर रहे हैं तो हाँ बिल्कुल सही बात है, हो सकता है। अगर अप्लाई कर रहे हैं जो ग्रेजुएशन हो हैव येट टू बी ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स, फाइन हुआ येट टू बी ग्रेजुएटेड, कैन देयर बिन द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें ऐसा तो मेंशन नहीं है कि वो लोग फाइनल ईयर में ही हैं, तो मुझे फर्स्ट पे डाउट लग रहा है। सम कैंडिडेट्स हैविंग ग्रेजुएशन एज द मिनिमम क्वालिफिकेशन कैन बी देयर इन द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। हाँ ये तो सही है, सेकंड फॉलो कर रहा है, बिकॉज पहले वाले में ऐसा मेंशन नहीं किया इन्होंने कि जो हुआ येट टू बी ग्रेजुएटेड का मतलब अभी तक ग्रेजुएट नहीं हो सकता वो थर्ड ईयर में, अगर थर्ड ईयर में होंगे तो कैसे वो सेलेक्ट हो जाएंगे। Height should be between 5 feet to 6 inches and 6 feet. One of the condition for recruiting fighter pilots. Fighter pilots should be presentable as they are the role models for the young. Only certain body types can fit fighter planet cockpit. I think second follow कर रहा है. Save and next. 6 नंबर कौन सा छोड़ा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल इन्फरेंस? क्या है? द मैनग्रूव कैन शेड टन्स ऑफ लीव्स पर एकर ईयर एवरी ईयर. फंगाई एंड बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन this leaf litter and consume it, and then are consumed by tiny worms and crustaceans, in which in turn feed small fish, which feed larger fish and birds and crocodile. Coastal areas cannot have food chains without mangroves. Mangroves are an essential component of all marine ecosystem. Of all marine, all आ गया तो ये तो गलत हो गया. Mangroves have a crucial role in some of the food chains, coastal food chains. The composition of marine flora and fauna is largely determined by mangroves. I think composition of marine, इससे क्या पता चलता है? Some of the, आई थिंक लास्ट वाला पता चलता है इससे। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं 18 नंबर, ये छोड़ते हैं। ये क्या है? इन रो, इसको भी बाद में करते हैं। 21 क्या है? एग्जेम्प्ट। एक काम करते हैं, लेट मी स्विच टू मैथ्स, फिर देखते हैं इसमें समय होगा तो इसमें आते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, मतलब सॉल्व करने पे 0.84 का क्यूब है इंटू 0.84 इंटू 0.84 अपॉन 0.16। तो अगर एक से कटेगा तो इधर जाएगा कितना? 4 4 4 ज़ा
और ये 2 × 1 = 21, ठीक, इंटू, और ये जाएगा अगर तो 21, तो अगर मैं 25 4 करूँ और इधर जाएगा 21, हो गया ये 21 का क्यूब अपॉन 4/100 प्लस 0.84 का स्क्वायर। क्या यार ये, एक सेकेंड, लेट मी डू इट अगेन। देखो, ये है 0.84 का क्यूब अपॉन 16 प्लस 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.84 प्लस 1। अगर मैं एक काम करूं कि 0.84 को कॉमन ले लूं तो आएगा 0.84 का स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 0.84 प्लस 1 और प्लस 1, तो 84 इंटू 84 अपॉन 16 इंटू 100 इंटू 00 और लग जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 4 4 जा और 21, तो 21 का स्क्वायर अपॉन 1 2 3 4 प्लस इतना है, तो इस सर देखोगे तो 21 अपॉन 25। 21 + 25 होता है 46 अपॉन 25। 46 अगर मैं 100 करूं और यहाँ पे, एक मिनट, 25 था ना ये, इंटू 4 करूँ, नीचे 4 करूँ, 6 + 24 का 2 16 × 184, और यहाँ पे तो 100 है ही। कुछ तो ट्रिक लगेगी इसमें, मैंने इसमें गड़बड़ तो कर ही दिया। सेव एंड नेक्स्ट, पहले वो करते हैं जो जो कर सकते हैं। मीन, इतने, इसको बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे, बाद में नेक्स्ट। HCF ऑफ टू इक्वेशन इज दिस पी स्क्वायर। HCF अगर ये है तो इसका मतलब वो डिवाइड करेगा पूरा, मतलब x की वैल्यू अगर 1 पुट करें दोनों इक्वेशन में, 1 - 4 + 10 + p = 0, तो 10 + 1 11, 11 - 4 7, p = -7, फिर 1 + 3 - q + 16 = 0, 3 1 4, 16 4 20, तो q आ जाएगा 20, तो p का स्क्वायर मतलब 49 + 400 दैट इज़ 449। आंसर इज दिस। सेव एंड नेक्स्ट, बाद में करते हैं, बाद में नेक्स्ट। मीडियन बताना है ना इसको। वैसे दिख तो मुझे बहुत आसान रहा है, पर क्या ये सही में आसान है ये मेरे को देखना पड़ेगा। A B और C है 9, AC है 7 और BC है 12। लेंथ ऑफ मीडियन AD निकालना है, AD निकालना है, मीडियन AD है, यानी ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला होता है बट मैं अभी भूल रही हूँ। मैं इसको 9 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 प्लस, मैं बाद में करती हूँ इसको। इसको अगर ब्रेक करें 17 - 4√15 को, तो 3 3 ज़ा 9, और √3 और 5 कितना होता है, 5 + 3 होता है। इसको ब्रेक करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 + 5। अच्छा हाँ, तो अगर मैं इसको ये करूँ मतलब 2√3 - √15 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 + 5, ठीक। ये तो मतलब इसका इधर आ जाएगा, इसको ये लिख सकते हैं अंडर रूट। फिर 8, इसी तरह 8 - 2√15 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट। इसको 2 2 ज़ा 4, 2√3, 2 2 ज़ा 4, √3 ये हो जाएगा √5 -√3, तो प्लस का √5 -√3 कैंसिल, तो आंसर इज √3। सेवन नेक्स्ट। अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, टू फॉर्म मतलब 4/3 पाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू हॉलो सिलेंडर विच इज़ पाई r², यानी 10 का स्क्वायर। अच्छा, एक्सटर्नल डायमीटर उसको इसका इतना है, हॉलो सिलेंडर है, एक्सटर्नल डायमीटर इतना है, तो इंटरनल मतलब पहले h कर लेते हैं, h ब्रैकेट में इंटर 5 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 = 25 - r², तो r की वैल्यू 4 आ जाएगी, 5 - 4 1 होता है।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इतना है। अच्छा, तो 3 = 0 -2 प्लस पी अपॉन 3, फिर इज अ 9, 9 + 2 p = 11। 7 नेक्स्ट। इसको बाद में करें क्या? हाँ, इसको बाद में करते हैं। लेंथ ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 22 more than the supplementary angle. The larger of two supplementary angles are 22 more than the smaller. दोनों का सम जो होना चाहिए यानी 22। Find the smaller angles. 22 more than the smaller angle. The larger of two supplementary angles. यानी अगर x plus y is equal to 180, तो लार्जर द लार्जर ऑफ 22, मतलब अगर x अगर तुम्हारा लार्जर है तो y x+20, अगर मान लो y लार्जर है तो ये x+22 हो जाएगा। 22 माइनस करो, 10 - 2 8, 158 अपॉन 2, 2 7 जा और 9 जा 79। लगता मुझे कोई 7 में इसको द मीन एंड स्टैंडर्ड स्क्वायर्स ऑफ द मीन की वैल्यू तुम्हारी 100 है एंड मीन ऑफ 100 टर्म्स, अच्छा सॉरी, मीन की वैल्यू 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3 है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? x बार का होल स्क्वायर अपॉन, आई थिंक मीन होता है, मीन दैट इज एक्स बार एन होता है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द 100 टर्म्स। तो आई थिंक 50 × 3, ये नहीं पता, इसको बाद में करते हैं। द 3 कार्ड्स आर ड्रॉन ABC पार्टनरशिप में, ये भी बहुत लंबा है, इसको बाद में करते हैं। बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म ईच मेजरिंग साइड, मतलब साइड जो है वो 4 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 × 4 का स्क्वायर, दैट इज़ 4√3। लेटरल सरफेस एरिया क्या है? 120 है। तो वैसे प्रिज्म का होता है 3 टाइम्स, साइड हो गया 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है? हाइट निकाल लेते हैं चलो, 120, तो हाइट यहाँ से आ जाएगी 10। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम इज बेस एरिया इंटू हाइट, 4√3 × 10, 40√3। 7 नेक्स्ट। पार्ट ए अब काफ़ी पार्ट सी देखते हैं, काफ़ी इसमें छोड़ा है, तो अटेम्प्ट करते हैं, पहला ही वाला देखते हैं। कह रहा है इसको बाद में करते हैं क्योंकि इसको अटेम्प्ट कर चुके हैं। इफ़ द मीन ऑफ इफ़ द मीन ऑफ मतलब x+5 45, x-32, x+25, x+13 और x-21, तो 1 2 3 4 5 5x, और 45 + 25 होता है, मतलब 45 + 25 70 होता है, प्लस 13 करेंगे तो 83, 83 - 32 होता है 51, -21 हो जाएगा 49। तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 3 4 5 इज इक्वल टू 12 × 5, दैट इज 60। तो 5x वुड बी 30, तो x वुड बी 6। मीन ऑफ लास्ट थ्री कितना होगा? मतलब 3x + 25 + 13 - 21, तो दैट इज 17/3। तो 6 3 18, 6 18 + 17 होता है 35/3। इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 11.67 आएगा। 7 नेक्स्ट। इसको नहीं पता, इसको बाद में करते हैं। अ कोन विथ रेडियस एन हाइट, एक कोई कोन है जिसकी रेडियस तुम्हारी है, मान लेते हैं ये 6 है, और हाइट तुम्हारी 36 है। इट इज़ कट पैरेलल टू इट्स बेस ऑन अ सर्टेन हाइट फ्रॉम द बेस। अच्छा, इसको कट किया गया है। द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रस्टम, इसका जो वॉल्यूम है वो 572 है, यानी 572 इज इक्वल टू, हमें ये नहीं पता है। और इक्वल हाफ्स में किया गया है क्या? नहीं। इज इक्वल टू 1/π/3 π/3 h आर स्क्वायर, एक तो आर हमें पता है 6 का स्क्वायर है, प्लस आर स्क्वायर प्लस 6r, ये है टोटल। तो अगर मैं इसको 22 × 7 करूँ तो 572/22 हो जाता है 26। तो इधर आ जाएगा 26 × 21 इज इक्वल टू h,
36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 6r, अगर ये r है तो अब क्या वह बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रस्टम आफ्टर कटिंग इज 572, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हैविंग द सेम रेडियस, हाइट 36 है। देखो, अगर ये पूरा 36 हाइट है, ये 36 है और ये r है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूँ तो क्या होगा, 36 अपॉन h, मतलब अगर ये h है, 36 अपॉन h इज इक्वल टू 6 अपॉन r। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 6r। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ 26 इंटू 21 इज इक्वल टू 6 इंटू आर इंटू 36 प्लस आर स्क्वायर प्लस 6r, 6r तो h ही हो जाता है, छः छोड़ो, 6r h है, h है। तो यहाँ से 26 इंटू 21, तो यहाँ से आई थिंक 91 आएगा। और क्या ही जा रहा है ये, आर को अगर 7 रखो तो कितना जाएगा कुछ और करता है इसमें गड़बड़, इसको बाद में करते हैं। A can complete 12% of the work in 15% of the allotted time. A and B work for the entire period of the allotted time and works got completed. A अगर 12% काम कर रहा है 15% allotted time में, difference between compound and for 2 years is this, यानी 2.25 P is equal to P R by 100 का स्क्वायर। तो P से P कैंसिल, तो यहाँ से 1.5 इज इक्वल टू R by 100 आ जाएगा। R by 100 का स्क्वायर होता है तो 1.5 हो जाएगा, तो R वुड बी 150%। ठीक है, 2.25 है, 2.25 इज़ वॉट, 1.5 का स्क्वायर, R अपॉन 100 इज़ 1.5 का स्क्वायर, तो 1. फिर कह रहा है कि इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एंड सेम फॉर 1 ईयर इज़ इतना, मतलब एस है ना ये, एस माइनस 2.25 पी इज़ इक्वल टू सेम सम यानी पी इंटू रेट है 150 इंटू 1/100, तो इधर से 1.5 पी आ जाएगा, 1.5 पी। और अगर मैं इसको मतलब 1.5 प्लस 2.25 करूँ तो एस वुड बी 3.75 पी। वट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम सम एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेम सम यानी सम कितना है, p है, सेम रेट ऑफ 150 है आफ्टर 2 years। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s अपॉन 3.75। तो हमको बताना है 150 का सक्सेसिव 2 साल के लिए कितना होगा, 150 इंटू 300 प्लस 15 इंटू 15, तो यानी 225, यानी 525 आएगा। अब ये जो 525 आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इंटू s अपॉन 3.75। तो 525 जो 525 है, इसको अगर 25 से डिवाइड करो तो ये 21 जाएगा, और 375 को 25 से डिवाइड करो तो 15 आएगा, और फिर 15 3 5 जा और 3 7 जा, 7/5, 7/5 होता है 1/2s, 1/4s। 7 नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 90% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, मतलब पाए तो कोन का पाई आर एल इज इक्वल टू 90/100 इंटू जो टोटल सरफेस एरिया है इसका पाई आर एल प्लस आर ये होता है। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 10L इज इक्वल टू 9L प्लस 9R, तो 9L है तो L इज़ इक्वल टू 9R, तो L अपॉन R की फ्रैक्शन 9/1 आ जाएगा। देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज़ हाउ मच टाइम्स मोर देन द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होगा,
वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 यानी π/3 r² इंटू h is how much times the cube is how much time, if the volume of the cube is how much times the cube of the height of the cube is equal to x into h cube. ये x की वैल्यू निकालनी है अगर, तो यहाँ तो तुम्हारा h² आ जाएगा कट के, तो यहाँ पे h², तो x की वैल्यू इतनी आ जाएगी. तो अब ये बताओ, अगर ये 1 है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 81, 80 हो जाएगा, √80, हाइट √80 हो जाएगी, तो यानी 80/1, तो π/240 आंसर है. 7 नेक्स्ट. दो टैंक है, एक 24 घंटे में भरता है और एक 18 में. इनका एलसीएम होता है 72. 24 3 ज़ा 4 ज़ा. इफ़ टू टैप्स आर ओपनड एट 11 AM देन व्हाट टाइम शुड, अगर दोनों टैप 11 बजे खुल जाते हैं, देन व्हाट टाइम शुड द टैप बी क्लोज्ड टू कम्प्लीटली फिल द टैंक एग्जैक्टली एट 2 AM. यानी 11 पे खुल रहा है और 12 पे बंद हो रहे हैं, 3 घंटे चल रहा है, 3 घंटे. तो कितने टाइम 3 घंटे चलेगा? अगर if two taps are opened at 11 AM मतलब 7, at what time in PM एग्जैक्टली एट 2 AM है वो. 2 AM मतलब रात के 2 बजे. तो 11 से 11 तो 12, 12 3 15 घंटे में भरेगा वो. तो 15 घंटे में भरने का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि पहले अगर क्यू को क्लोज किस टाइम पे करेंगे, एट वॉट टाइम. 15 मतलब पहले तो अगर ये 15 हुआ तो 105 हुआ. 105 में अगर 105 में अगर 72 घटाएंगे तो 33 फिर भी आएगा. तो अगर मैं अगर ऑप्शन चेकिंग से करूं कि P को जो है और Q को भरता है X, तो टोटल आवर कितना ले रहा है उसको? 15 - x इज इक्वल टू 72. टोटल तो 15 ले रहा है ना, तो 7x + 60 - 4x इज इक्वल टू 72. तो 3x इज इक्वल टू 72 - 60 होता है 12, तो x वुड बी 4. तो अगर 7 4 ज़ा 28 और 4 × 11 28 + 44 72. हाँ ठीक है, तो ये 4 घंटे बाद बंद हो जाएगा. तो 4 घंटे मतलब 11 + 4 कितना होता है? 4 घंटे बाद बंद करने का मतलब है 3 बजे, नहीं 2 बजे, 3 बजे सॉरी. 7 नेक्स्ट. ये करते हैं. एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ फीट ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस. कोई पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन फीट एट अ ग्राउंड डिप्रेश एट अ डिस्टेंस ऑफ 10√3 फ्रॉम द टावर इज इनिशियली 30. अच्छा, it initially 30 degree. After walking some distance towards the tower, the angle of depression of the tower to the head and the foot of the man is 45 degree and 60 degree. Head and the foot of the man. हेड कुछ अगर चल रहा है, अगर ये मैन यहाँ पे आएगा तो हेड पे तुम्हारा 45 डिग्री है और इस पे तुम्हारा 60 डिग्री है, और इतनी डिस्टेंस है तुम्हारी अभी तो 10√3 है. फाइंड द हाइट ऑफ द मैन. ये अगर हाइट h है, ये h है, तो अभी तो वो कितना है फ्रॉम द फीट, ये इसकी वैल्यू कितनी है? ये है तुम्हारी 30 डिग्री. तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? अगर मान लो इसको x ले लो, तो x/10√3 इज इक्वल टू 1/√3. तो यानी ये डिस्टेंस आ जाएगी 10. बस हो गया काम. ये अगर 10 है, ये h है, तो ये 10 - h हो जाएगी. ये भी हो गया काम. अब अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, ठीक, या मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूं, तो ये अगर 10 - h है तो ये भी 10 - h होगा. तो 10 - h है ये. अगर मैं इसको देखूं तो ये भी 10, ये जो होगा, ये वाला जो है ये, तो 10 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, अगर इसको y मान लो, y इज इक्वल टू √3, तो y इज इक्वल टू 10/√3. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10/√3. हमको मैन की हाइट निकालनी है, तो मैन की हाइट के लिए
ये 10/√3 है, 10 माइनस एच इज इक्वल टू 10/√3। ये इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 10√3 इज इक्वल टू एच, 10√3 माइनस h√3 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 10√3 माइनस 10/√3 इज इक्वल टू एच, ये आंसर है। बट डिवाइड में तो कुछ है 10√3, हाँ सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट। दो वेसल्स हैं जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो गिवन है। ए और बी वेसल्स हैं। स्पिरिट और वाटर इनका रेशियो 2:3 है। एक सेकेंड। एस इज टू वाट स्पिरिट इज टू वाटर ए और बी है, 2:3 है और 7:3 है। 3 + 2 5, 7 3 10। मैं एक काम करती हूँ, इक्वेट कर लेती हूँ। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ 4 और 6, ठीक है। देयर कॉन्टेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो, और इनको मिक्स कर रहा है 4 और 5 में। तो 16, 24, 35 और 15, 6 तो कितना बचेगा? 16 + 5, 16 5 होता है 11, 51 और 24 + 15 होता है 39। फिर कह रहा है 360 ऑफ ml, मतलब 360 ml। तो ये तुम्हारा स्पिरिटो जो नया जो फंक्शन है स्पिरिट ऑफ वाटर, उसमें रेशियो कितना है? 51:39, ये है रेशियो नया जो आया है, ठीक है। उसको सी मान लो। इसमें से 360 ml ऑफ दिस, इन 360 ml ऑफ दिस सोल्यूशन 360 ml है। तो अगर 90 की वैल्यू 360 है तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। यानी स्पिरिट और वाटर में 51 × 4 यानी ये 204 ml है, और 39 × 4 यानी ये 156 ml है। हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स टू गेट अ सोल्यूशन कंटेनिंग इक्वल, कितना वाटर मिक्स करें कि वो इक्वल आ जाए? तो यानी एक्स मिक्स करें, यानी इसको इक्वल करने के लिए मतलब 204 माइनस 156 करोगे तो 48 ml मिक्स कर दो अगर, तो आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है PQR, जिसमें से PQ जो है वो PR के बराबर है। A एंड B आर द पॉइंट्स ऑन PR एंड PQ। A और B कोई पॉइंट है PQR, सॉरी, ए इसमें, A है इसमें PR में, और B है तुम्हारा PQ में रिस्पेक्टिवली, सच दैट AB इज इक्वल टू, AB जो है वो RQ के पैरेलल है, ठीक है। C एंड D आर पॉइंट्स ऑन QR, C और D Q में पॉइंट, C एंड D आर पॉइंट्स ऑन QR सच दैट AC इज पैरेलल टू PD, AC इज पैरेलल टू PD। अच्छा, या तो ऐसे होगा, CA है DA है, तो AC इज पैरेलल टू PD। अच्छा, ठीक। इफ़ PQ इज़ 10, अगर PQ जो है वो 10 है, एंड PA इज़ टू AR इज़ 2:3, PA 2 है, ये 3 है, APD BAC के बराबर है, AAP कहाँ गया, APD दिस इज इक्वल टू BAC इसके बराबर है। तो हमको DC बताना है, ये लेंथ बतानी है। पहले तो पैरेलल है ये, और ये हमें 10 गिवन है, तो ये यहाँ से ये निकल आ जाएगा। ये अगर 10 है, ये पूरा 10 है, यानी 5 की वैल्यू गिवन है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी 10 होगा, ये 10 है अगर, ठीक है। अगर 5 की वैल्यू 10 गिवन है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 × 4 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब कह रहा है कि इसके पैरेलल है, ये वाला जो है ये इसके पैरेलल है, यानी इस वाले ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में अगर देखो तो इस पूरे मतलब 6/10 इज इक्वल टू दिस, इसको क्या लिखोगे? AC/10। तो AC आ जाएगा, ये तुम्हारा 6 आ जाएगा। हमको निकालना DC है। ठीक, ये इतना है, तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर करें, ये 6 है, ये 10 है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये अगर 6 और 10 है तो ये पूरा जो हो जाएगा वो 6:6, ये भी 10 तो आइसोसेलेस है, तो ये पूरा तो 10 नहीं होगा। अरे यार पता नहीं क्या है, इसको बाद में करते हैं। स्ट्रेस में चीज़ें थोड़ी गड़बड़ हो रही हैं मुझसे।
वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर आर इक्वल. वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब यानी ए क्यूब इज इक्वल टू 2/3 और 2/3 पाई आर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया होता है 6a² इज इक्वल टू हाउ मच टाइम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर. तो पहले यहाँ से अगर देखो तो हेमिस्फेयर का इसका होता है मतलब x इंटू 3πr². एक तरीके से ये निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, हाउ मच टाइम्स अपॉन 3πr², ये निकालना है हमको. तो यहाँ से क्या, अच्छा इसमें a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी इसकी पावर 1/3 और r के टर्म्स में ही निकालना है. तो 1/3, तो अगर मैं 6 इंटू 2/3 की पावर 1/3 अपॉन 3 ये x है. तो 6 इंटू 2/3 की पावर 1/3 की पावर 1/3 अपॉन 3 तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा और 1/3 -1, तो इधर आ जाएगा -2/3 ये हो गया. फिर क्या हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2/3 तो आएगा ही. और 2/3 इधर तुम्हारा आई थिंक 3/2 की पावर 1/3 हो जाएगा. यहाँ से x इज इक्वल टू आर तो कट जाएगा, 6a² है ना, तो a² कितना आ जाएगा 2/3 2/3 अपॉन 3 तो ये तो 2 आ जाएगा और ये पाई आ जाएगा. और पाई में अगर ऊपर मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 2/3 की पावर 2/3 इंटू पाई की पावर 2/3 -1, तो -1/3 ये आ जाएगा. तो नीचे जाएगा यानी 1/पाई की पावर 1/3. इतना तो तय है कि, तो इधर अगर जाएगा 2/3 पाई आना चाहिए, 2/3 पाई, 2/3 पाई. तो अगर एक मैं 3 बाहर ले लूँ, तो अगर एक 3 बाहर ले लेती हूँ तो यहाँ पे आई थिंक आंसर यही होना चाहिए, मेरे ख्याल से तो आंसर यही है. सेव एंड नेक्स्ट करते हैं. A book is marked 50% above cost price and sold at 2% 2 successive discount of m% and this percent. 100 रुपए की सीपी है और मार्केट प्राइस तुम्हारा 150 रुपये है और उसको 2 प्रॉफिट उसको 8 का मिल रहा है. तो पहले तो 100/150 इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट 108 है. 0 कैंसिल, तो 3 5 जा और 3 36 जा, 52, तो 72 इज इक्वल टू 100 माइनस टी, तो डिस्काउंट हो जाएगा 100 माइनस 72 विच इज़ 28. डिस्काउंट है 28. तो अगर हम, तो मतलब ये हुआ कि m+10 माइनस m इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 28. तो m+10 माइनस m+10 है ये, माइनस m अपॉन 10, तो m इज इक्वल टू 28. 28 में 10 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा. तो m माइनस ये हो जाएगा 9m/10, तो m की वैल्यू आ जाएगी 20. इफ़ फाइंड द प्रॉफिट इफ इंस्टेड टू डिस्काउंट मार्क प्राइस इज सक्सेसिव. अगर प्रॉफिट बताना, अगर इंस्टेड ऑफ गिविंग 2 डिस्काउंट मार्केट प्राइस इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज,
अच्छा मतलब मान लो पहले 100 था, 100 से m% यानी 120 हुआ, 120 से फिर 10% बढ़ गया। सो 120 इंटू एक करेंगे तो 132 हो जाएगा, 132। तो कह रहा है कि कितना प्रॉफिट होगा। इफ इंस्टेड द मार्केट प्राइस इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय सेम परसेंटेज। तो मतलब पहले 150 था, सॉरी पहले 150 था, 150 का 20% कितना होगा, मतलब 150 का 120 घटाएंगे तो 180 हो जाएगा, फिर इसमें फिर करेंगे तो 198 हो जाएगा, तो 198, तो आई थिंक 98% होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट, इसको छोड़ते हैं, 19 नंबर देखते हैं, ये कर सकते हैं बट टाइम है नहीं करने का। फिर भी ये कुछ है जिसमें से, ऐसे करके कुछ है जिसमें से ओ टी 80 टेंजेंट है, ए ओ क्यू 68 डिग्री है, ए ओ क्यू ये तुम्हारा 68 डिग्री है, ये 68। लेट्स सी, बहुत ही ख़राब जाने वाला है, मतलब जो फुल टेस्ट में आता था। द स्कोर इज़ 105.5। इंग्लिश में 40 है, कॉन्स में 25.5 है, रीजनिंग में 28.5 है, जनरल अवेयरनेस में 11.5 है। लेट्स सी द एनालिसिस पार्ट, इसके एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर एनालिसिस बल्कि, क्योंकि बहुत ही गंदे मार्क्स हैं इसमें, नॉट एक्सपेक्टेड। लेट्स सी, लेट्स डू द एनालिसिस पार्ट। तो रीजनिंग से देखते हैं, 3 गलत हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ जॉब इज ग्रेजुएशन, हाउएवर कैंडिडेट्स हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर मे ऑल्सो अप्लाई। मेरे हिसाब से मतलब इनका कंक्लूजन बोथ 1 and 2 कैसे हो सकता है, बोथ 1 and 2। कैंडिडेट्स हु आर येट टू ग्रेजुएट आर दोज हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर ऑफ, ऐसा कैसे इसमें हम निकाल लें कि फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में ही है। येट टू ग्रेजुएट का मतलब कैसे हो सकता है कि फाइनल ईयर में हो सकता है, वो थर्ड ईयर में ही हूँ। इसका मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। 6th नंबर क्या है, इसमें मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस बताना था, और हमें ये मैंग्रोव के बारे में था कि मैंग्रोव लीव्स शेड करते हैं, फिर उन लीव्स को फंगाई बैक्टीरिया खाते हैं, फिर उसको उन फंगाई बैक्टीरिया को टाइनी वॉर्म्स खाते हैं, फिर वॉर्म्स को तुम्हारे स्मॉल फिशेस खाते हैं, स्मॉल को लार्ज फिशेस खाते हैं। एक तरीके से ये एक इकोसिस्टम, ये एक मतलब एक फूड चेन बना रहा था। तो इसमें बताना है मोस्ट लॉजिकल, कोस्टल एरियाज कैन नॉट हैव फूड चेन विदाउट मैंग्रोव्स। क्या ये सही है? गलत। Mangroves have a crucial role in some of the coastal food chain. Why not third? Composition of flora and fauna, marine flora and fauna is largely determined by the mangroves. ओके, ठीक है। इसको देखते, मैंने 11 लगाया था, इज इट 12? हाँ, वो जल्दी जल्दी में एक जो भूले हैं हम। अब जैसे ये है, अब इसको करें अगर बिना, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इतना टफ आएगा, क्या मतलब आफ्टर हैविंग अ टीसीएस पैटर्न ऑफ वेरी डिसेंट पीवाईक्यूज अचानक से पैटर्न चेंज करेगा तो वो इतना टफ देगा, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी कम जाएगी, फिर नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक हो जाएगा। आई डोंट थिंक कि इतना टफ फिर भी देगा ये एग्ज़ाम। लेट्स सी क्या होता है, इसको करते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 4, 16 मतलब डिवाइड को क्या लिख सकते हैं, 16 + 4 होता है 20, 16 - 4 होता है 11, 16 × 4 64 + 10, 21 × 7 64/4 होता है 4। 16 × 4 64 + 10, 21, 16 नहीं, 21 × 7 तो कुछ और होता है, तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। 16/4 होता है 4, और 4 × 16 64 + 10, 3 × 21 63। लेट्स सी द सोल्यूशन। अच्छा, फर्स्ट डिजिट है 1 + 6,
7, सेकेंड डिजिट है 16। ओके, मतलब 1 + 6 7, और उसको डिवाइड करोगे तो 3 + 1 3 और 3। तो वैसे ही 5 + 5 होता है 10 +11, यही तो हुआ। 5 + 5 10 होता है, और 55 में 5 घर करेंगे तो 11 आएगा। तो 10 और 1011 ओके। 18 नंबर क्या था? जे अगर 25 है तो गेम निकालना था। जे की वैल्यू 25 है, तो गेम की वैल्यू 65 है। गेम की वैल्यू 65 कैसे हो सकती थी? जे 13, और ई होता है 5। 7 1 8 3 11 5 16, 1 कैरी 26। ओके, बेसिक का होता है 2 1 19 9 और 3। 9 9 18 20 21 21 3 24 और 3 34। 34 का कुछ मल्टीपल लगेगा क्या? 85 होना चाहिए इसका आंसर। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये था 26 और 65। 13 2 13 5 17 2 17 5 जा। तो मेरे ख्याल से यही था। इनका ऑप्शन क्या है वैसे? 26 × 2.5। अच्छा, सब में 2.5 का मल्टीप्लाई किया, भाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर है तो ये कर सकते थे। इन अ रो एक्स इज 24 फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट एंड से एक्स जो है वो 24 है, और वाई एंड से राइट जो है वो 28 है। व्हेन दे इंटरचेंज द पोजीशन, जब वो लोग अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो यानी ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। y बिकम्स 40 फ्रॉम द राइट एंड। y जो है वो राइट एंड से 40 बन जाता है, राइट एंड से 40 बन जा रहा है। तो इसके आगे 39 बच्चे तो होंगे ही होंगे। देन व्हाट विल द पोजीशन ऑफ x? x फ्रॉम द आफ्टर इंटरचेंज फ्रॉम द राइट, x फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो अगर ऐसे देखो तो यहाँ पे तुम्हारा 39 बच्चे हैं, और 28, 39 माइनस 28 होता है 11। ये 39 बच्चे हैं यहाँ पे। इज इट 36? 63, 39 प्लस 63, 39 प्लस नेक्स्ट देखते हैं। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट होता है 5, 24, 5, 13, 16 और 20। एफ होता है 6, 25, फिर 6, 21, ओ पी क्यू 17 और 14। ये था। हमें निकालना क्या था? एक्सपायर का, यानी 5। या तो फिर ऐसे होगा कि नहीं, ई का एफ हो, एफ का ओ है, तो क्या ये ई का एफ होगा? यानी एफ और एक्स का कितना था? वाई। तो एफ वाई आंसर है, थर्ड आंसर है। नहीं, थर्ड आंसर नहीं है। इनके हिसाब से कोडिंग क्या लगती है इसमें? इन्होंने 3 में डिवाइड किया, 5 का 6, 5 का 6। अरे यार शिट, मतलब ये बहुत सिंपल था, फिर भी मैं ये नहीं करी मैं। दिस इज़ माई मिस्टेक। तो ये मेरा वो था कि इसको 5 + 1, 5 + 1 24 + 1। नेक्स्ट है, इसको देखते हैं। 1 2x b y c 6 z 1। ग्रुपिंग किया था 3 6 6। देखते हैं इनका सोल्यूशन क्या है। मतलब इन्होंने 3 में ग्रुप किया है। 3 3 3, सॉरी, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 और 3। 1 + 1। तो बट ये मतलब 1 + 1 है, फिर 2 + 1 +1 + 1, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 + 1 6 है।
ये नहीं आ रहा मुझे। A34, ये देखते हैं। L होता है 12, 20, 24, 15 और 13। इज इट एम्स? 12 का ऑपोजिट 2 होता है, नॉट ऑपोजिट। क्या बताना है इसमें? L का ऑपोजिट 2 होता है, T का नॉट ऑपोजिट J है, 24 का ऑपोजिट 3 है। मतलब बाकी सब ऑपोजिट नहीं है, वो ऑपोजिट है। ओके, ये थोड़ा इजी था। हाँ, इसको करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, शीतल पी है, वो अपने पी से वेस्ट जा रहा है 50 मीटर। शी टेक्स अ राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चलती है। देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब वो लेफ्ट टर्न ले रही है एंड वॉक्स, लेफ्ट टर्न लेती है, 47 चलती है। एक सेकेंड, हाँ, अब वो लेफ़्ट ले रही है और 47 चलती है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स, अब फिर से वो लेफ्ट ले रही है और फिर से 20 चल रही है। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, अब वो राइट टर्न ले रही है और 50 मीटर चल रही है वो। तो अब वो राइट ले रही है और 50 चल रही है। फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स, फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रही है एंड टू पॉइंट क्यू, फिर से शी इज़ टेकिंग अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर, पॉइंट क्यू। कुछ और गड़बड़ कर दिया इसमें अब मैंने। स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी, शीतल शीतल वॉक्स 50 मीटर्स, ये कोई पॉइंट पी है, इधर से ये 50 मीटर गया वेस्ट। शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स, अब वो राइट टर्न लेती है और 20 मीटर चलती है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 47 मीटर, अब वो क्या है, लेफ्ट टर्न ले रही है और 47 मीटर चल रही है। शी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 75 मीटर, ये स्किप कर दिया था, अब वो 75 मीटर चल रही है। शी अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 47 मीटर, तो 47 मीटर चल रही है, तो ये 47 है। शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न अगेन एंड वॉक्स 20 मीटर, अब वो फिर से लेफ्ट टर्न ले रही है और 20 मीटर चल रही है। देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 50 मीटर, अब वो राइट टर्न लेती है और 50 मीटर चल रही है। एंड फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स 10 मीटर, अब वो लेफ्ट टर्न लेती है और क्यू पहुंचती है 10 मीटर पे। हाउ फार, इन विच डायरेक्शन इस पी क्यू के कौन से डायरेक्शन में है? तो पी जो है वो क्यू के नॉर्थ में है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि पी जो है वो क्यू के नॉर्थ में, और कितना है ये, 2, 20, 30। तो ये तुम्हारा कितना है, ये तुम्हारा 20 है और ये 10 है, 50, 50, 75 - 50, 25, 25 ड्यू नॉर्थ। करने लायक था, बट वही है कि स्ट्रेस में कर ही नहीं पाओगे आप। मैंने 13 वाला मेरा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, तो पहले जो जो छोड़े हैं वो देखते हैं। सो इसको करते हैं। 0.84 का क्यूब अपॉन 16 है, तो अगर मैं 0.84 का क्यूब अपॉन 0.16 है, प्लस 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.84 प्लस 1, तो अगर मैं 0.84 अपॉन 0.16 ले लूँ और ये 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.84 का स्क्वायर प्लस 0.84 प्लस 1, ये तो हो जाएगा 21/4। अब 0.84 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ और 21/4 प्लस 1 प्लस 0.84 प्लस 1, ये हो जाएगा 21 प्लस मतलब 26/4 हो जाएगा।
26/4 को लिख सकते हैं 13/2। ठीक। अब मैं अगर इनमें से 0.84 कॉमन लूँ तो 0.84 इंटू 13/2 +1 तो ये तो चला जाता है 0.42 और इसमें करेंगे तो ये 5.46 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, और +1 कर लो अगर 6.46 हो जाएगा। ये है, ये अगर अपॉन 100 तो √84 इंटू 646/100 +1 ये है। तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड, 646 को 84 से अगर मल्टीप्लाई करो 4852 और 646 को 8 इंटू 8615 4 8 16 2 3 सॉरी 4 और 5 646 ये है 646 इंटू 84 तो प्लस, और अगर करें तो 642 ये पूरा आ जाएगा 64264 ये हमको निकालना है। तो ये निकालना है, ये तो बहुत पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये अगर बहुत ही मैं अगर इसको सॉल्व करूं और टू द पॉइंट तो नहीं निकल पाएगा, मुझे नहीं लगता है किसी का स्क्वायर हो भी सकता है। बट अगर मैं ये देखूं, अगर मैं इसको 625 लिखूं, अगर मैं इसको लिख लूँ 625 अपॉन, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि 2.5 के समथिंग आना चाहिए। मैं 2.5 लगाती हूँ, लेट्स सी आंसर इज़ राइट। हाँ देखा, सही है। वैसे इनका क्या तरीका था, इनका तरीका देखते हैं। कंपेयरिंग करा इन्होंने, किससे किया है, a माइनस बी ए स्क्वायर, एक सेकेंड, a माइनस बी कंपेयर किया इन्होंने 1 माइनस 0.84 a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया इन्होंने। अच्छा ओके, इसको करते हैं 7x tan 7x प्लस tan 5x, ये मुझे देखना ही पड़ेगा सोल्यूशन। साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो tan 7x और tan 5x को क्या लिखोगे। tan 7x मतलब होता है साइन 7x अपॉन कॉस 7x प्लस साइन 5x अपॉन कॉस 5, मतलब कॉस 5x। तो इधर से आ जाएगा साइन 7x इंटू कॉस 5x, यानी साइन की पावर साइन 12x आ जाएगा, अपॉन C7x कॉस 7x इंटू कॉस 5x, और नीचे आ जाएगा साइन 2x 7 माइनस 5 अपॉन, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन कॉस 2x कॉस 12x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan 12x आएगा। नेक्स्ट है, इजी था, अ कोन। अच्छा ये करते हैं, एक कोन है, मान लेते हैं ये कोई कोन है हमारा, जिसकी बेस रेडियस है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है और हाइट तुम्हें गिवन है 36। इसको पैरेलली कट करते हैं, ठीक। मान लेते हैं ये h है, तो ये 36 माइनस h हो जाएगा। इसको पैरेलली कट करते हैं फ्रॉम द बेस सर्टेन हाइट अबव द बेस, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फ्रस्टम आफ्टर कटिंग इज, इसका मतलब इसका पूरा जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम गिवन है 572 विच इज़ इक्वल टू पाई h इंटू पाई/3 होता है, पाई/3 h इंटू ये 6 है,
6 का स्क्वायर, और ये अगर r है 8 का स्क्वायर प्लस 6r, तो यहाँ से हो जाएगा 22 अप इंटू 7, तो ये 22 तो 2 जा जाएगा ये, और 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा h इज इक्वल टू 26 इंटू 21, ये हुआ। Find the volume of the sphere having same radius as the smaller cone obtained after cutting। r की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, पर मुझे हाइट के बारे में तो, अगर ये कुछ ट्राइंगल बन रहा है, इस वाले ट्राइंगल में देखो तो 36 माइनस एच अपॉन 36 इज इक्वल टू r अपॉन 6, तो यहाँ से 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6r। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या h की वैल्यू आ जाएगी, h इज इक्वल टू 36 माइनस 6r, तो h इज इक्वल टू 6 माइनस r, तो 26 इंटू 21 इज इक्वल टू h को लिख सकते हैं 6 इंटू 6 माइनस आर, और ब्रैकेट में 6 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6r, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपॉन 6 करो तो ये लगभग 91 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये देखो तो ये जो है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 क्यूब माइनस r क्यूब, जो कि ये बनाएगा अभी, तो मतलब ये हो जाएगा 91 इज इक्वल टू 6 का क्यूब माइनस r का क्यूब, तो 91 216 माइनस 91 होता है 125, तो r इज इक्वल टू 5, r आ जाएगा 5। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर हैविंग द सेम रेडियस, तो स्फेयर का वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये आएगा, विच इज़ इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको बिकॉज कटेगा तो आई थिंक नहीं, 5 5 ज़ा 25, 4 ज़ा 100, 5 ज़ा 500, और 22 इंटू 500 करोगे तो 11 समथिंग डिवाइडेड बाय 21, तो ये कुछ 5 जाएगा, 5 5 and 5 5 and 5 5 to 10 105, फिर 50, फिर 2 जाएगा 42 80, फिर ये 3 जाएगा 523 आंसर, इट वुड बी 523, सॉरी 523, या मतलब थोड़ा सा मैं करती तो शायद 524 हो जाता, पॉइंट में जाएगा तो ये ज़ीरो लग, तो 524 आंसर है, मतलब इतना कैलकुलेट करने के बाद भी मैं गलती करके आती हूँ। ए कैन कम्प्लीट 12% ऑफ द वर्क इन 15% ऑफ द अलॉटेड टाइम, कोई बंदा ए है जो कि 12% काम करता है 15% ऑफ द अलॉटेड टाइम, ठीक। ए एंड बी वर्क फॉर एंटायर पीरियड ऑफ द अलॉटेड टाइम एंड गॉट द वर्क completed ऑन टाइम, what इज़ द पोर्शन ऑफ द वर्क डन बाय ए, इज इट, let the total time be 100 minutes, 12% of the work in complete in 15 minutes, so 4% of the work is completed in 5 minutes, 80% of the work is completed in 100 minutes, A can complete 80% in 100 minutes, then B will complete, अच्छा इनके हिसाब से अगर 100 मिनट टोटल टाइम है तो इसका 15% कितना होगा, 15% होता है 15 मिनट्स, 12% ऑफ द मंथ, फिर मतलब 12% ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड इन 15 मिनट्स, तो 100 मतलब, तो मतलब एक तरीके से ये हुआ कि 15 मिनट्स में कर रहा है 12% काम, ठीक। तो 100 मिनट में कितना करेगा, तो 12 अपॉन 15 इंटू 100 विच इज़ 5 3 5 ज़ा और 3 4 ज़ा 20, यानी 80% काम करता है वो कितने में, 80% काम करता है 100 मिनट में, तो 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 इज़ 20% काम भी करेगा, ठीक है, तो समझ गए हम, पर मतलब फिर भी मैं एग्ज़ाम में शायद ही कर पाती। अब ये जैसे ये है इसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू पी आर के
बराबर है ए इज़ द पॉइंट ऑन पी आर, ये मान लेते कोई पॉइंट ए है पी आर में और बी पी क्यू में है रिस्पेक्टिवली, ए बी सच दैट ए बी इज़ पैरेलल टू आर क्यू। अच्छा, हमको गिवन था ये 5 गिवन है और एक की पी क्यू की वैल्यू भी गिवन थी, इसकी वैल्यू गिवन थी 10, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो यानी ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 2:3 में काटेगा भी। तो ये अब हमको बताना है, तो अगर ये h है और ये अगर मान लेते हैं ये x है और ये 10 माइनस एक्स हो जाएगा, तो x अपॉन 10 इज इक्वल टू 4/6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जा 3 जा, तो 20/3 आ जाएगा x। तो ये अगर 20/3 है तो ये 10 माइनस 20/3 यानी ये 10/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब क्या कह रहा है कि सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन क्यू आर, सी और डी क्यू आर में पॉइंट्स हैं such that QR such that AC is parallel to PD, AC is parallel to PD, ये तुम्हारा D है और ये C है, ये पैरेलल है। ठीक है, APD BAC के बराबर है, APD दिस X है अगर मान लो, BAC के बराबर है, BAC इसके बराबर है। पहले तो इस वाले ट्राइंगल में अगर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ DC, ये हमको निकालना है। इसको कैसे करेंगे, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, पैरेलल तो है यार, जिसको देखना पड़ेगा सोल्यूशन। ए आर की वैल्यू तो पता चल गई 6 है, ए सी पी डी के पैरेलल है, तो इससे क्या निकाला उन्होंने, ट्राइंगल ए सी आर पैरेलल सिमिलर टू पी डी आर। ठीक, तो पी ए अपॉन मतलब पी ए अपॉन ए आर इज इक्वल टू डी सी अपॉन सी आर। हाँ, ये भी है कि अगर मान लो ये y है और ये z है, तो 4 पी ए अपॉन ए आर दैट इज़ 4/6 इज इक्वल टू डी सी है तुम्हारा y अपॉन सी आर इज z, तो y इज विच इज़ इक्वल टू 2/3। तो ये गिवन है इसके बराबर, तो पी डी सी इज इक्वल टू ए पी डी सी, भाई ये क्या, पी डी सी इज इक्वल टू ए पी डी, ए पी और डी, ये एक्स हो जाएगा। या पी आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू 10, पी आर इज इक्वल टू आर डी इज इक्वल टू 10, वाई प्लस जेड 10 है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये, हम इसको बाद में करते हैं और दूसरा देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें से ए बी 9 है, ए सी 7 है और इसको मीडियन है, तो यानी ये 6 होगा, ये 6 होगा। तो लेंथ ऑफ ए डी निकालना है, तो इसका एक फार्मूला स्पेसिफिक होता है। लेट्स सी द फार्मूला। आई थिंक इसका फार्मूला होता है ए बी इसका अपोलोनियस थ्योरम होता है, दैट इज़ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर, बी डी या डी सी। तो ए बी का स्क्वायर होता है 81 प्लस 49 इज इक्वल टू 2, अगर ये एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 36, तो 72, 49 मतलब 81 प्लस 49 होता है 130, 130 माइनस 72 अगर करो
तो ये 58 आएगा, तो अंडर रूट 58 आंसर हो जाएगा। 58, सॉरी ये 58 आएगा, मतलब 58 इज इक्वल टू 2x², तो ये 29 हो जाएगा, तो अंडर रूट 29 आंसर है। फिर 19 नंबर क्या है, इसको हम कर रहे थे जो कि टाइम ओवर हो गया था। ये है ऐसे करके, और ये है ये, तो ये क्या बना हुआ है, ए बी इज़ अ डायमीटर। ये ए है, ये बी है, और ये ओ है, ये क्यू है, और ये टी है। ए टी इज़ अ टेंजेंट ए ओ क्यू। ए ओ क्यू ये तुम्हारा 68 है, और ए टी क्यू निकालना है। ए टी क्यू, ओ सेंटर है, तो यानी ये इसके बराबर होगा। ये 68 है, तो 100 माइनस 180 माइनस 68 होता है, और 2112 112 हो गया। ए टी क्यू, अगर ये तो ये भी बराबर होगा, ये बराबर है ये, तो ये कितना आ जाएगा, 68 अपॉन 2 करो, मतलब माइनस अगर 180 करेंगे अपॉन 2, यानी ये 34 आएगा, और ये 34 आ जाएगा। और अगर ये बराबर है 34, फिफ्टी वन, क्या इसका मुझे देखना पड़ेगा। ए बी टी, हाँ ये तो 34 आ गया। फिर बी ए टी टेंजेंट है, तो ये 90 है। अच्छा हाँ, ये 90 है, तो 90 प्लस 34 होता है 124 माइनस 180, तो ये 56 आ जाएगा। सही बात है। 21 नंबर, टू बोट्स पी एंड क्यू between two cities A and B flow of 5 kilometer per hour. The cities are 3 kilometers apart. P and Q have water speed 25 and 15. P and Q, अच्छा, start from A, P and B से A। ये चल रहा है 25, और ये चल रहा है 15। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 300। P and Q starts from cities A and B towards B and A respectively at the same times. When and where they will meet for the second time? और सेकेंड मीटिंग, भाई साहब, इसको करते हैं। इस क्यू का मतलब क्या होता है, मीन तुम्हारा इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, टोटल टर्म्स 100 है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टर्म्स होता है टोटल टर्म्स इंटू 50 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो वो आ जाएगा इतना। ये फॉर्मूला ही याद कर लो कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टर्म होता है टोटल इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। 23rd, if three cards are drawn randomly by a pack of 52, what is the probability that three of them are jack? प्रोबेबिलिटी बतानी है कि तीन जो हों वो जैक हों, यानी पहले तो 52C3, ये तुम्हारा वो हो गया। 52C3 तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, तो 52 इंटू 51,
इंटू 50 अपॉन 3 इंटू 2, 3 17 जा 25, 25 इंटू 17 होता है 425, तो ये लगभग एक, ये तुम्हारा 222100 आ जाएगा। अब निकालना है कि अगर प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ऑफ देम आर जैक, तो जैक तो 4 होते हैं, तो 4C3 यानी 4C3 यानी 4, तो 4C3 यानी 4 अपॉन 221 इंटू 100 करो इंटू 25, तो ये तुम्हारा 1/5525। हाँ ये थोड़ा आसान था पर कर सकते थे, पर वही है कि स्ट्रेस में तो नहीं कर पाते। ए बी और सी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11/5, 7/2 और 15/8। जस्ट अ सेकेंड, मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो जा रहा है, एक मिनट। सो ये वाला देखते हैं, ए बी सी एंटर पार्टनरशिप, तो मैंने ये लिखा था, इसको पहले बराबर करते हैं। तो मतलब इसमें अगर मैं 40 एलसीएम लेके 8, मतलब देखा जाए तो 40 जाएगा, तो इंटू 8 इंटू 20 इंटू 5 है ना, तो इधर से आ जाएगा 88, 140 और 75। After 4 months, A raises her share of investment by 62.5%. If the total profits after 12 months since the beginning of the partnership is 138,584, how much does A gets as a share of her profit? आफ्टर 4 मंथ्स, यानी ये 4 मंथ्स तक करेगा, उसके बाद ये अपना 60, ए रेजेस 62 इन्वेस्टमेंट बाय 62.5%, मतलब 88 का 1 प्लस 62.5, 62.5 अपॉन 100, इतना परसेंट वो रेस कर रहा है 8 महीने के लिए। और तो आई थिंक ये 12 महीने के लिए करेगा, और ये 12, क्योंकि बी और सी के बारे में ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो इसको मैं अगर प्लस करूँ, ये पूरा प्लस का मतलब 88 इंटू 4, पहले तो होता है 84, 88 इंटू 4, 8 4 32, कैरी 3, तो ये हो जाएगा 352, 352, और यहाँ से 88, तो ये ज़ीरो, एक और ज़ीरो आ जाएगा, तो 625 को 25 से करो तो 620, मतलब 625 अपॉन 25, तो ये 25 ही होता है। 25 ये हो गया और 40 ये हो गया, और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, तो ये 13 हो जाएगा, 13/8, 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 88 इंटू 13 करोगे तो मतलब 88 इंटू 13, तो ये 4, फिर 4 1 1 1 1 4 4 प्लस 1 1 4 4, इसमें अगर प्लस करो प्लस 352, तो ये 1496 हो गया, और ये तो 140 इंटू 12 है, और ये 75 इंटू 12 है। अगर मैं और कट कर लूँ इसको 4 से, तो ये 374 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 3 आ जाएगा। होपफुली और कट हो रहा है क्या? नहीं, और नहीं कट होगा। तो ये 140 इंटू 3 है तुम्हारा 420, और 75 इंटू 3 है 225, 225। तो ए का शेयर बताना है। इफ़ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो अगर मैं इसको प्लस करूँ, मतलब 374 प्लस 420 प्लस 225, 549, 7 2 9 2 11, और 437 1 8 2 10, 1019 की वैल्यू गिवन है 138,584, ये गिवन है। तो इसकी 1 की वैल्यू मतलब 225 प्लस 400, 138,584, कुछ और गड़बड़ कर रही हूँ या तो फिर मैं, लेट्स सी। इसका मेरे ख्याल से इसका आंसर ये होना चाहिए, मैं फिर से इसको देखती हूँ। 1496 आया, ये तो सही था। 140 ये भी सही था, तो बाकी सब तो ये सही था। ये आई वॉज डूइंग अ राइट। इसको और कट करते हैं।
तो लगभग आई थिंक इन्होंने अप्रॉक्सीमेट ही लगाया है, कर सही रहे हैं, मतलब 138,584 अपॉन 1019 इंटू 374, ये निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन ही खेला इन्होंने, सम ऑफ डिजिट्स, तो इसका ये होगा। मैं अगर 1019 को डिवाइड करूं 138,584 से, 138,584, तो 1 जाएगा पहले, 1019, तो ये 6 6 3 3 6 6 8 इंटू 3 अगर जाएगा, ये 3 चला जाएगा, 1019 इंटू 3 करेंगे तो 7,530,81164, फिर ये जाएगा 6 से जाएगा नहीं, 5 जाएगा, 1019 इंटू 5 अगर करो तो 9550, नहीं ये तो कट रहा है, आई थिंक ये 6 से चला जाएगा, 6 से जाएगा, 6 तो आएगा 136, हाँ 136 से कट हो रहा है, 136 इंटू हमको निकालना है 374, 136 इंटू 374, तो 136 इंटू 4, 544 हो गया, फिर 136 इंटू 7, ये 952 हो गया, फिर इंटू 136 इंटू 3 दैट इज़ 408, तो 4 6 5 5 10 8 18 0 50864, सही है आंसर, 50864 आएगा, सही। तो कर ही चुके थे। हाँ, इंग्लिश में देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। तो इंग्लिश में गलत हुआ है थर्ड नंबर, आइदर रविंद्र और हिज फ्रेंड हैव जॉइंड होना चाहिए। ठीक है, आज अब से याद रखेंगे कि आइदर और के बाद जो लास्ट वाला होता है वो। अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट्स, इसमें पी से एस है, आर है, पी है, तो हमने पी, देयर वाज अ लिटिल मनी इन द बैंक एंड ही हैड सम स्टॉक ऑन हैंड। एस क्या है, बट द स्टॉक मूव्ड आउट स्लोली, पी एस, आई थिंक पी एस क्यू, आर पी है पहला ये टाइम। अरुण सडनली फाउंड हिमसेल्फ इन द स्ट्रीट, फिर आर से था इनका। एट फर्स्ट ही कुड हार्डली अंडरस्टैंड द फुल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कोलैप्स। ओके, फिर 16 नंबर क्या था, रियल्म का मैंने स्काई एक्टिविटी लगाया था, इज इट स्काई। हाँ, रियल्म का मतलब होता है किंगडम, तो एक्टिविटी का मतलब किंगडम कैसे हो सकता है, पता नहीं यार। इसमें भी फिर करते हैं, व्हेन ब्रायन हियर्स अबाउट द स्कूल्स टैलेंट शो ही डिसाइडेड टू साइन अप, बट व्हेन सम स्टूडेंट्स फाइंड्स आउट ही विल पार्टिसिपेट दे लाफ एट हिम। एस से तो नहीं होगा। ब्रायन थिंक्स दैट क्यू से स्टार्ट होगा, फिर एस, क्यू के बाद आर होगा, या तो क्यू से स्टार्ट होगा, ये तो तय है, या तो आर है या तो पी है, तो इज इट क्यू आर है, तो ये गलत था। पी क्यू आर एस मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। जनरल अवेयरनेस में काफ़ी गलत किया है, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसके हम पॉइंट्स नोट करके इसके अलग से प्रॉपर एनालिसिस कर लेंगे। सो मार्क्स मेरे कितने थे मैं खुद भूल गई। सो 105.5 है, बहुत ही कम स्कोर है, बिकॉज जब आप मतलब टीचर्स के पैटर्न में ठीक ठाक स्कोर करने लगते हो, फिर अचानक से इसमें 105 है, आई डोंट नो, ठीक है, बट स्टिल आई वर्क ऑन द, मतलब जो भी गलतियाँ करी हैं, टाइम की तो कमी बहुत है इसमें, लेंदी भी है, कैलकुलेटिव भी है, और उस समय वो मेथड स्ट्राइक करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अभी तो इतना स्ट्रेस नहीं है व्हेन वी आर गिविंग मॉक ऑन होम, बट जब जैसे घर पे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, स्ट्रेस इतना नहीं फील कर पाते हैं, बट वहाँ पे तो माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, ब्लैकआउट हो रहा है, तो वो एक अलग ही स्ट्रेस हो जाएगा। सो पर पता नहीं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों के 200 में 200 कैसे आ सकते हैं, 200 में 200, 1 1 8 95, कोई नहीं, इतने तो इम्पॉसिबल है लाना असली एग्ज़ाम में। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, और हो सक आई मतलब इम्प्रूव इन द नेक्स्ट मॉक विथ न्यू मेथड्स, इसकी एनालिसिस और अच्छे से करनी पड़ेगी मुझे पर्सनली। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, एंड प्लीज़ टू गिव, और डीमोटिवेट मत होइएगा, बिकॉज अगर आपका ख़राब है तो सबका ख़राब होगा, ये समझ के चलिए, एंड थैंक यू गाइस।
Till then, take care, stay safe, and all the very best for your respective exams.